آج ویو 360 میں بدعنوان عناصر احساس پروگرام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کی خصوصی مشیر ثانیہ نشتر سے ہماری بات چیت۔ اب دنیا کے لیے سماجی تحفظ میں انویسٹمنٹس کرنا بہت ہی ناگزیر ہو گیا ہے، بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔ جسمانی طور پر معذور ہیں، ذہنی طور پر نہیں۔ پاکستان کے ہنرمند معذور افراد کو روزگار کے مواقع دینے کی چند قابل ستائش کوششوں پر ایک نظر۔ جسمانی معذور ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دماغ سے معذور نہیں ہے۔ اور کیا امریکہ میں داخلے کے خواہش مند طلباء اس سال بھی داخلے کے لیے سٹینڈرڈائز ٹیسٹ پاس کریں گے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ احساس غربت کے خاتمے اور سماجی بہبود کے لیے پاکستان کی موجودہ حکومت کا ایک اہم پروگرام ہے۔ منصوبے کی ویب سائٹ کے مطابق یہ 134 پالیسیز پر اور پروگرامز پر مشتمل منصوبہ ہے، جس کا مقصد معاشرے کے محروم افراد کی زندگیاں بہتر بنانا ہے۔ احساس پروگرام کی سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ اور غربت مٹاؤ مہم ثانیہ نشتر سے ہماری ساتھی مونا کاظم نے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو بدعنوان عناصر ہیں وہ بہت متحرک ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی کیش فلوز کی موومنٹ ہوتی ہے تو فیک ایس ایم ایسز، فیک ای میلز، فیک ایپس جو ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کا آن گوئنگ بیسز ہمارا ایک نظام ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے اوپر اب ہم کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مگر یہ بدعنوان عناصر سے جو نبٹنا ہے یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہم بڑے متحرک ہیں کہ اس چیلنج کو ہم ہیڈ آن لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا چیلنج ہے وہ آن گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جب ہماری خاص طور پہ جب کیش ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں تو جو یہ بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے جا کے اور اپنی کیش وصول کرتے ہیں، تو جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ان سے کٹوتی کرتے ہیں، 200 روپے رکھ لیے، 500 روپے رکھ لیے۔ اس کے لیے بھی، اس سے نبٹنے کے لیے بھی ہمارا نظام ہے۔ تیسری جو ہماری اور میں کہوں گی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈیجیٹل اور فائنینشیل لٹریسی کا ہے کہ کیونکہ ہمارا سارا نظام ڈیجیٹل ہے۔ اچھا ثانیہ، یہ پروگرام جو ہے اس پہ یقیناً تنقید بھی ہوئی ہے، اور تنقید میں سب سے بڑا یہی تنقید کا ایک پوائنٹ ہے کہ پہنچ نہیں رہے فنڈز لوگوں تک جنہوں نے اپلائی کیا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں پہنچے بھی ہیں وہاں بہت مس مینجمنٹ، اسٹیمپیڈ کے نیوز آئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس کی جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کلیکٹیولی ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو ٹچ کرتے ہیں۔ ہزاروں ڈسبرسمنٹ پوائنٹس ہیں، اور ان میں میں مانتی ہوں کہ کہیں مس مینجمنٹ بھی ضرور ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بائیو میٹرک فیلیئرس کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جن کے لواحقین فوت ہو جاتے ہیں ان کو اپلیکیشنز پروسیس کرنے میں بھی دیر لگتی ہے۔ مگر یہ کہنا کہ پرائمریلی اس میں ایشوز ہیں، یہ رسپیکٹفلی صحیح نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک اوور ویلمنگلی حد تک جو ہے وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، جہاں پہ مرد کو ایک مین بریڈ ارنر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر احساس پروگرام کے اندر 50% عورتوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کس وجہ سے حکومت نے یہ ارادہ کیا؟ کیا ویمن امپاورمنٹ کا بھی اس میں کوئی اینگل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ احساس کے تحت 50% پلس پالیسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی احساس کے بینیفٹس ہیں، جو بھی پروگرام ہیں، اس کے 50% سے زیادہ ثمرات جو ہیں وہ خواتین اور بچیوں کو پہنچنے چاہیے۔ احساس کفالت جس کے ذریعے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے 100% خواتین کے لیے، جو احساس آمدن ہے وہ 60% خواتین کے لیے ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہو رہا ہے کہ دور دراز، دور افتادہ علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں لڑکیوں کو گنتی میں ہی شمار نہیں کیا جاتا، جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو وہ صرف لڑکے بتائیں گے، لڑکیوں کو بتائیں گے ہی نہیں، کیوں کو گنتی میں گنا ہی نہیں جاتا۔ اور ایسے
तनाजुर में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लड़कियों की पढ़ाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी नशो नुमा के लिए ज़्यादा वजीफ़ा रखना, ख़ानदानों को ये सिग्नल करना कि लड़कियां बहुत अहम है, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी है गवर्नमेंट की ख़वातीन और ख़ुसूसन बच्चियों के लिए। ये एक बहुत अहम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। क्या एक स्टाइपेंड मुकर्रर करना या स्कॉलरशिप्स देना, क्या ये इन द लॉन्ग टर्म एक हल हमें तलाश करके देगा इस मसले का? जो एहसास के जो 14 कैटेगरीज के लिए जो प्रोग्राम हैं, उनको लोगों की ज़रूरत के तनाजुर में देखना चाहिए। जो असल क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रोग्राम को ठीक डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो करप्शन से पाक हो? क्या आप उसकी डिलीवरी एक साउंड प्रोसेस से कर रहे हैं ताकि पिलफरेज ना हो? और उसके लिए हम पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि प्रोग्राम्स के डिज़ाइंस में डिस्टॉर्शन ना आए, कोई पिलफरेज ना हो और लोगों तक, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों तक उनके प्रोग्राम्स के समरात पहुँचें। इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो बजटिंग होती है, पहले तो ये बताइए कि क्या वो काफ़ी होती है? मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि 2019-20 में जो हमारा बजट था 247 बिलियन 100% यूटिलाइजेशन, और 2020-21 का जो बजट था 200 बिलियन 100% हमने यूटिलाइजेशन की, और इस दफ़ा का जो 260 बिलियन का बजट है इंशाल्लाह उसको भी हम टाइम से पहले यूटिलाइज करेंगे। पाकिस्तान में माजूर अफराद के लिए मुलाजमतों का कोटा होने के बावजूद ऐसे अफराद के लिए नौकरी हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। सूबा पंजाब के सरकारी इदारों में इनका कोटा सिर्फ 3% है। समन खान हमें एक ऐसे मरकज़ के बारे में बता रही हैं जहां हाथ और पाँव से माजूर या सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम अफराद मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए काम करके रोज़गार कमा रहे हैं। दो तीन फैक्ट्री में गई हूँ लेकिन उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। उन्होंने कहा आप तो कर ही नहीं सकती हैं। पहले इंसान ये कह दे के काम नहीं कर सकती तो दिल टूट जाता है इंसान का। इदारे बहाली माजूरा 4 दहाइयों से पाकिस्तान में गजाला अंजुम जैसे बहुत से माजूर अफराद को मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने पर काम कर रहा है। 2007 से कायम स्किल सेंटर में कपड़े और गत्ते के थैले, ज्वेलरी बैग्स, बिद भरने वाली थैलियाँ, टिशू बॉक्स और ऐसी बहुत सी अशिया माजूर अफराद के हाथों तैयार होकर निकल रही हैं, लेकिन इन अशिया को मार्केट तक रसाई दिलाना आसान नहीं था। एक स्टोर है, वहाँ मैं गई और उनको मैंने कहा बेटा ये लिफाफे हमारे से ख़रीद लो। तो बेचारा 2 मिनट में देखा, उसने कहा मैडम आप बेचने आई हैं? मैंने कहा आप मुझे पैसे दो। उसने मुझे 2007 की बात है, उसने 150 रुपया दिया। तो बैग तो बहुत थे मगर खैर उसकी मेहरबानी, उसने 150 दे दिया। उसके बाद मैंने उसमें अपने कुछ डाले और मैंने बच्चों को जाके 500 का नोट दिखाया। मैंने कहा बच्चों ये हमने पहली कमाई हमारी। तो दे वर वेरी हैप्पी। तनवीर ज़िया ने बार बार ख़रीदार तलाश किए और बिलाखिर बड़े ब्रांड्स की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गईं। इनमें एक अहम नाम एहसान चप्पल एंड शूज़ का है। हम उनकी चीज़ों को इस मेरिट पर नहीं दुनिया के सामने रखना चाहते कि ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसे बच्चों ने बनाई हैं जो चैलेंज्ड हैं फिज़िकली, बल्कि हम ये चाहते थे कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कंपैटिबल हों और कम्पीटेबल हों। इनिशियल कॉन्सेप्ट उन्हीं की तरफ से आया था, बट हमने उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी उनको हेल्प किया, फिर उनको काम दिया रेगुलरली। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तादाद 16 लाख है। 3% कोटे के तहत 48,000 नौकरियां खसूसी अफराद के लिए मुख्तस हैं। इनमें गिनती के अफराद अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, बेशतर 1 से 4 स्केल के मुलाजमीन हैं। महकमे सोशल वेलफेयर ने निजी इदारों पर भी माजूरों का 3% कोटा लाजिम किया हुआ है। भर्तियां ना करने वाले इन अफराद की तनख्वाह हुकूमती इदारे को जमा कराने के पाबंद हैं। बदकिस्मती ये है कि वो लेवल 4 ही नीचे तक जो ग्रेड 1, 2, 3, 4 की ऑड जॉब्स हैं उसके अगेंस्ट वो पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। ऐसे ही मसाइल का सामना बाकी सूबों में बसने वाले माजूर पाकिस्तानियों को भी है। स्किल सेंटर के कारीगरों की नज़र में वो खुशकिस्मत हैं कि इन्हें ऐसे हुनर सिखाए गए जिनकी मार्केट को ज़रूरत है। पहले थे समझते कि ये तो कुछ हाथ पैर नहीं इसके, ठीक है ना, काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता,
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके 12 साल हो गए मैंने काम किया है, ठीक है ना। अपनी मेहनत के पैसों की मैंने बाइक ली है, प्लाट लिया 5 मरले का अल्हम्दुलिल्लाह। जिस्मानी माजूर हम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिमाग से माजूर नहीं है। वो माजूर अफराद जो कोई काम नहीं कर सकते, उनकी वालदा या बहनों को यहाँ काम करके अपने मुआशी हालात बेहतर बनाने का मौका भी दिया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में आम और माजूर अफराद के दरमियान तालीम का फ़र्क ख़त्म करना वक्त लेगा, इसलिए फ़नी तरबियत और माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए उन्हें ख़ुद मुख्तार बनाने का अमल सरकारी और निजी सतह पर मुलाजमतें दिलवाने से बेहतर है, और हुकूमती सतह पर माजूर अफराद की मरदमशुमारी और माजूरियों की दर्जा बंदी किए बगैर मसाइल का हल निकालना मुश्किल है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। शो में आगे चलकर देखेंगे कि तुर्की में मौसीकार कोविड की वजह से किन मसाइल का शिकार हैं। इसके अलावा दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में रिवायती खेल तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में अब भी एक रिवायती खेल खेला जाता है। इस पर तफसीली रिपोर्ट शामिल करेंगे आने वाले शोज़ में। आज इसकी एक झलक। सींग के अलावा मैंने बहुत सी दूसरी चीज़ों की भी कोशिश की, लेकिन वो भी लचक ना होने की वजह से टूट जाते हैं। अमेरिका के तदरीसी इदारों में अमूमन अगस्त या सितंबर से नया तालीमी साल शुरू होता है, लेकिन यहाँ दाखिला लेने के लिए तलबा को कई मराहल से गुजरना पड़ता है और एडमिशन का अमल कई माह पहले ही शुरू हो जाता है। अमेरिका के अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट राइज हैं ताकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले तलबा को यकसां पैमाने पर जांचा जा सके। ताहम इस बार कोविड-19 की वजह से इनमें किन तब्दीलियों का इम्कान है, इस बारे में तफसील हम जानेंगे फ़ायज़ा बुखारी से। फ़ायज़ा, क्या इस साल भी यहाँ एडमिशन के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट पास करना पड़ेंगे और क्यों तनकीद क्यों की जाती है इन पर? जी असद, कोविड-19 शटडाउन से पहले भी अमेरिका के कुछ तालीमी इदारे ऐलान कर चुके थे कि वहाँ दाखिले के लिए SAT और ACT जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मोतबर समझी जाने वाली आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ ने भी इन टेस्टों को अगले साल तक के लिए ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद ये इम्कान और भी कवी हुआ है कि शायद दीगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी रास्ते का इंतखाब करें। इन टेस्ट के हवाले से पहले भी ये तनकीद की जाती रही है कि ये तलबा को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक रोबोट की तरह जाँचते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए आप स्टूडेंट की ज़हनी काबिलियत का अंदाज़ा तो शायद लगा सकते हैं, लेकिन जिस डिग्री के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस हवाले से उनके मौजू होने, उनकी शख्सियत और उस तालीमी मैदान में उनकी हकीकी दिलचस्पी वगैरह का जायज़ा नहीं ले सकते। अमरीकी कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिर्फ टेस्ट स्कोर ही अहम नहीं होते, बल्कि ये भी अहम समझा जाता है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने की हैसियत से वो दूसरे स्टूडेंट्स को क्या नया सिखा सकेंगे। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हम आपको इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोविड-19 ने जहां बहुत से मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर किया है, वहीं तालीमी मैदान में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां देखी गईं। मसलन अमरीकी कॉलेजेस में दाखिले के लिए SAT और ACT जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स का गैर यकीनी मुस्तकबिल। इन टेस्ट्स का इनेकाद करने वाले कॉलेज बोर्ड ने इस साल के आगाज़ में कहा कि SAT या तो 2022 तक के लिए मौखर रहेंगे या बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता कुछ लोग इन्हें अहम भी समझते हैं, जैसे हफीज़ लाखानी, जो कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट्स की तैयारी के लिए न्यूयॉर्क में एक इदारा चला रहे हैं।
The difficulty of earning an A can be मुख्तलिफ स्कूल्स में ए ग्रेड को हासिल करने की दुश्वारी मुख्तलिफ हो सकती है और इसी लिहाज से मायारी टेस्ट बहुत अहम होते हैं। SAT या ACT टेस्टों के स्कोर की मदद से हम मुख्तलिफ सेकेंडरी स्कूलों के तलबा की काबिलियत का तकाबली जायजा ले सकते हैं। दूसरी जानिब इन टेस्टों की मुखालिफत करने वालों का कहना है कि ये तलबा की काबिलियत की दुरुस्त जांच नहीं करते और इनमें ऐसे तलबा बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं जो टेस्ट लेने के तरीक़ाकार को बेहतर तौर से समझते हैं और जो माली लिहाज से ज़्यादा खुशहाल होते हैं। इन टेस्ट के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों में नेशनल सेंटर फॉर फेयर एंड ओपन टेस्टिंग से मुंसलिक अकील बेलो भी शामिल हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा ऐसे स्टूडेंट्स को होगा जिनके पास इन टेस्टों की तैयारी में मदद लेने के लिए पैसा मौजूद है। ये सिस्टम आबादी के कई तबकों को उनके तालीमी पस मंज़र की बुनियाद पर खारिज कर देता है। अनाइस चबूकियान ने स्कूल के आखिरी 2 साल स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तैयारी में गुजारे। उनके वालिदैन ने ट्यूटर्स रखे जिन पर $3000 खर्चा आया। ये एक स्ट्रेटेजिक इम्तिहान जैसा है अगर आप सवालों को आसानी से समझना जानते हो। ट्यूटर्स ने मुझे सवालों को आसानी से हल करने की हिकमत अमली सिखाई है। अमेरिका में आईवी लीग समेत 1,500 से ज़ायद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने भी इन टेस्ट्स को गैर लाजमी करार दे दिया है जो अगले तालीमी साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। वाशिंगटन से सेकेंडरी स्कूल पास करने वाली आदियोलुवा फातोकासी को स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिए बगैर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। इन टेस्टों के मुखालिफिन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसा करने का मशवरा देते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सिस्टम और टेक्सास की सेंट मैरी यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है कि अगर आप इन मयारी टेस्ट्स के नताइज उन्हें भेज भी दें तो भी वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत वाज़ह पॉलिसी है कि आप तलबा से अपनी तालीम और ज़ाती पसंद पर तवज्जो देने के लिए कहें। अनाइस और आदियोलुवा को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल गया। उनका मुस्तकबिल तो रोशन होता दिखाई दे रहा है, ताहम इन मयारी टेस्ट्स का मुस्तकबिल क्या होगा ये अभी गैर वाज़ेह है। असद, इस रिपोर्ट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट अफोर्ड करने का जिक्र हुआ तो ACT टेस्ट की मौजूदा रकम फ़ीस यानी कम अज़ कम 80 और SAT की $55 है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इसके अलावा इजाफी रकम भी जमा करवाना होती है। अमेरिका की आईवी लीग और दीगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इन टेस्ट को इस्तेमाल न करने के ऐलान के बाद स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इस पर मेरी बात हुई लैला अलमुद्दीन से जो अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर हैं और इस मैदान में बहुत तवील तजुर्बा भी रखती हैं। वो तलबा पर जोर देती हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़बान की सलाहियत जांचने वाले टेस्टों पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो उसके बाद अगर उनके लिए इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में से कोई देना मुमकिन हो तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर स्कोर अच्छा ना हो तो बेशक वो उसे एडमिशन दरख्वास्त के साथ ना भेजें। तो फायजा, इन टेस्ट का मुस्तकबिल फिर दिखाई क्या देता है? बिकॉज अपेरेंटली एक पूरा सेक्टर है जो कि इसके अगेंस्ट भी काम कर रहा है, जो चाहते हैं कि ये ना हो। क्या इस हवाले से आपकी बात हुई लैला से? जी बिल्कुल असद, लैला अलमुद्दीन के मुताबिक ऐसा नज़र आता है कि बतदरीज ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल करीब में नहीं जैसे कि कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिल कोई और टेस्ट राइज होने तक ये बहरहाल मुख्तलिफ तलबा की सलाहियतें जाँचने के लिए अहम मालूमात फराहम करते रहेंगे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को इस्तेमाल न करने का ऐलान कर दिया है और ये माजी में भी देखा गया है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी मॉडल की तकलीद करती हैं। उन्होंने मिसाल दी कि इस साल मारूफ अमरीकी तदरीसी इदारे MIT ने इन टेस्ट को गैर ज़रूरी करार दिया तो उसके बाद उनको मिलने वाली एडमिशन दरख्वास्तों में 67% इजाफा हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस साल मौसम ख़ज़ां में या फॉल में जो सेमेस्टर शुरू होने वाला है उसमें दरख्वास्तों की डेडलाइंस अपेरेंटली अब तक गुजर चुकी है और तलबा को अगले तालीमी साल के लिए जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं वहाँ स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में क्या पॉलिसी है इसकी मालूमात ख़ुद लेनी पड़ेंगी। क्या तालीमी इदारे जो हैं उनके तदरीसी इदारे जितने भी हैं इनकी पॉलिसी इस हवाले से अभी यकसां है या नहीं? जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक और अहम पहलू जिसकी लैला अलमुद्दीन ने निशानदेही की है वो ये है कि इस साल से अमेरिका के अक्सर तालीमी इदारे क्लासरूम टीचिंग का प्लान रखते हैं, लेकिन कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस जो डेल्टा वायरस की लपेट में है वो स्टूडेंट वीज़ा के इजरा के हवाले से अपने मुल्क में जो अमरीकी काउंसिल खाना है या अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़रूर मालूम करें, क्योंकि उन्हें वीज़े के हसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, और हम आपको अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बुध को व्यू 360 में हमारा हफ्तावार सिलसिला जो है सिम्पली अमेरिका, उसमें अमेरिका में आकर तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनके लिए बहुत सी मालूमात हैं, वो भी फ़ायज़ा ही आपके लिए लेके आ रही होंगी, देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आपका।
अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। तुर्की में कोविड इन्फेक्शंस की वजह से इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे यूरोप में अगर हम देखें तो तुर्की तीसरे नंबर पर आता है और एक साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ बार बार लॉकडाउन्स भी होते रहे हैं। इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले अफराद में मुल्क के मौसीकार भी हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से बहुत कम इमदाद मिली है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में भी स्प्रेड कर रहा है, सो स्टे सेफ। और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।